Hello, everybody. My name is Ekam, and this is the English Family YouTube channel. We discuss IELTS content over here, and ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ IELTS ਕਰਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਿਆ ਬਾਲਾ, one of our students ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਬੈਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ first attempt ਵਿੱਚ। She has done BVOC in psychology, I think, and 7 band in ਲਏ ਆ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਲਿਸਨਿੰਗ ਵਿੱਚ 7.5 ਸੀਗੇ, ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ 6.5 ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 6.5 ਸੀਗੇ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ 7 ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ। ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਅਬਾਊਟ ਹਰ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਥਿੰਗਸ, ਐਂਡ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆ। ਸੋ ਵੀਲ ਬੀ ਜਸਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਆ ਸਵਾਗਤ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਕੁੜੀਏ? ਸਰ ਵਧੀਆ। ਹਾਈ ਹਾਈ, ਯੂ ਆਰ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਸੋ ਗੁੱਡ, ਸੋ ਫੁੱਲ ਆਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ। ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। I have seen you after so long, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਹਾਂ 15 days ਮੈਂ ਯਾਰ 15 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ it's been years and years। ਅੱਛਾ ਚਲ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਇਟ ਫਾਰਮਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਸਟ ਬੇਟਾ ਲੈਟ ਅਸ ਨੋ ਆਇਲਸ ਦਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਮਤਲਬ ਯੂ ਡਿਡ ਯੂਰ BVOC, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂ ਹੈਡ ਅ ਗੁੱਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਫਿਰ ਆਇਲਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਆਇਆ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਵਾਈ ਯੂ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਡੂ ਆਇਲਸ, ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੀ ਕਿਉਂ? frankly speaking आइल्स का कोई मन नहीं था। इट जस्ट अ अटेम्प्ट दैट आई वांट टू गिव। माय पेरेंट्स मतलब मेरे पेरेंट्स से ये कहा था कि अगर आपने आइल्स दे दी तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आइल्स दे दी तो आप कनाडा चले जाओगे, सेकंड अटेम्प्ट नहीं करना। तो मेरे पास मेरा अच्छा। फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो आई जस्ट वांट टू ट्राई इट कि अगर आता है कि ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पे ऑप्शन तो है ही है। एंड सेकेंडली इफ वी टॉक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज, हम प्रोस्पेक्टिव देखें साइकोलॉजी का, तो वहाँ जो इंडिया में प्रोस्पेक्टिव है दैट दे आर नॉट अवेयर ऑफ द साइकोलॉजिस्ट। They are aware that psychology is just a mental issue that everyone deals with it, and that's the perspective they have. So मुझे वो perspective change करना था, just to ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ change ਨਾ ਇਸ everything. ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਆਈ ਡਨ ਪਲੱਸ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਇਨ +1 +2, ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਨਾਟ ਐਕਸਪਲੋਰਡ ਇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਮ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਉਹ ਪਾਗਲਪੁਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿਚ ਆਈ ਫੀਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ देयर, है ना। सो ये तो है। अच्छा ਹੁਣ ਆਇਲਸ से आ जा, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਲਸ से आ जा। ਆਪ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਪੇਪਰ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 7 ਬੈਂਡ ਲੈ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇਤਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਮਨ ਜਾ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, शिद्दत ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, बिकॉज मैं तेरी शिद्दत भी देखी है। आइल्स में ना लोग कहते हैं कि नहीं वो इंग्लिश स्पीकिंग है, सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग एक टेस्ट है। दैट इज नॉट अबाउट ओनली द इंग्लिश स्पीकिंग, बट हाँ ये मेंटली अगर आप प्रिपेयर हो किसी चीज के लिए और आपको करना है वो चीज कि अगर मुझे आइल्स में इतने बैंड लेकर आने हैं, तो आपकी मोटिवेशन आ जाती है कि आप कर लेते हो वो चीज। तो मेनली मेरी मोटिवेशन यही था कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना था मैंने बस। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂ ਹੈਵ ਸੈਡ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਗਜ਼ਾਮ ਐਸ ਪਰ ਯੂ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਯੂ ਡੀਲ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਕੋਪ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਰਾਈਟ? हाँ जी सर, ये तो है। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਜਿਵੇਂ ਫॉर एग्जांपल ਯੂ ਡਿਡ ਯੂਰ BVOC, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਯੂ ਵਰ ਇਨ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਯੂ ਵਰ ਇਨ? HMV ਔਰ KMV? यस सर, HMV। ਯੂ ਵਰ ਐਟ HMV, ਐਂਡ ਕਾਲਜ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕਾਲਜ। ਐਂਡ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਇਲਸ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਿਆ, ਹਾਊ ਵਾਸ ਦੈਟ ਥਿੰਗ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਆਇਲਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। व्हाट वाज द टेक इन दैट टाइम? सर मुझे लगता है कि यहाँ पे जब पंजाबी कोई सोचता है ना कि मुझे कनाडा आना है,
दे आर लुकिंग हम्म, फॉर द, मतलब यहाँ पे वो ये सोचते हैं कि नहीं यार कनाडा जाएंगे तो अच्छा लगेगा हमें, या हमारी लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी। वो इस हम्म, पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। पर मैंने ये सोचा था कि अगर मैंने हम्म, कनाडा जाना है तो मुझे अपनी फील्ड में जाना है, मुझे कोई और फील्ड स्विच नहीं करनी, या मुझे कोई और फील्ड में नहीं जाना। तो अगर आप हम्म, उस रेस में हो ना तो आपका पर्सपेक्टिव हम्म। अलग है। बस यही ये तो है, डिफरेंस है मेरे में और उनमें। ये तो क्लासिक, ये तो ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ when we had discussions and your father told us me ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ she is very much focused ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਵੇ। हम्म ਐਂਡ ਲਿਟਰਲੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆ ਜਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦਾ हम्म ਪੇਪਰ। ਪੇਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਯੂ ਡਿਡ ਯੂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ, ਯੂ ਫੈਲਟ ਵਾਟ? ਸੌਖਾ, ਔਖਾ, ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ? ਆ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਮੰਨਿਆ ਹੀ नहीं ਅਸੀਂ। मैंने आज ऐसे सोचा था कि उसमें पूरा पैराग्राफ होता है, फिर आपको पैराफ्रेज करना पड़ता है, then मतलब पुट डिफिकल्ट वर्ड्स इन इट एंड यू हैव टू फ्रेज द फुल पैराग्राफ होता है ऐसा। लाइक कि जब मैंने दिया मैंने कहा ये क्या है, यहाँ पे तो रीडिंग में हमें लोकेशन सब फाइंड आउट करते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे मैथ्स का पेपर नहीं होता, इक्वेशंस लिख रहे हैं, वो कर रहे हैं। हाँ ठीक, मतलब पहले पहले डिफिकल्ट लगा, फिर बाद में जब मॉक टेस्ट हुए, प्रैक्टिस हुई, फिर 1 महीना शायद 2 महीने मैंने प्रैक्टिस की, उसके बाद जाके थोड़ी मुझे लगा कि नहीं अब हाँ, ठीक है, अब आता है, अब ठीक ਅੱਛਾ है, अब ਆਇਲਸ मेंटली ਕੇ प्रिपेयर हो। ਆਇਲਸ की ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਆਇਲਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਤੇ YouTube ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ? ਯੂ ਜਸਟ ਸਰਚਡ ਹੇਅਰ ਐਂਡ देयर, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਲੱਸ 2 ਵੇਲੇ ਕਰ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਪੋਕਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ आया ਸੀ? मैंने एक बार ही मतलब ये क्लासेस ज्वाइन करने से पहले ना मैंने एक बार यूट्यूब पे लिखा कि हाउ टू, मतलब क्या आइल्स में क्या होता है, बेसिकली टेस्ट क्या होता है। तो उसमें ना अलग यार अलग वीडियोस आ गई, अगर आपको 30 मिनट्स में इतने कर लिए तो आपके ये स्कोर आ जाएगा, आए 20 मिनट्स में है। इतना कर लिया था ये आ जाएगा। तो मैं ये सोचती थी ये क्या है, व्हाट इज ये तो दिस? कुछ है ही। ਓ ਮੈਨ, ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੱਸ, ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ, ਯੂ ਗੇਵ ਯੂ ਪੇਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੋਡਿਊਲ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਕਿ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਮੋਡਿਊਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪ੍ਰਿਆ? सर लिसनिंग। ਲਿਸਨਿੰਗ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸੌਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਸਨਿੰਗ मुझे, ਚ हाँ, ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਬੈਠ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਲਿਸਨਿੰਗ? एवरीवन जो जब मैं पेपर दे रही थी ना, मतलब जो टेस्ट में हम बैठे हुए थे, हॉल में हाँ, हम बैठे हुए थे, वहां पे हाँ, सब ऐसे फोकस ओरिएंटेड थे कि हाँ बस लिसनिंग आ जाए, लिसनिंग आ जाए, हम ये कर ले, हम ये कर ले रही है। एंड आई वाज लाइक हाँ, एक्टिव लिसनिंग हुई ही नहीं है तो बिल्कुल ही नहीं सुनती है अच्छे से। क्योंकि वो हाँ। फास्ट बहुत होती है, हर बच्चे का कंसेप्ट अलग है। जैसे मुझे रीडिंग अच्छी लगती है, तेरे लिसनिंग नहीं लिसनिंग अच्छी चो ना, लगती कभी भी। लिसनिंग चो 7.5 है, यू हैव गॉट 7.5 इन लिसनिंग है। और मैं सरप्राइज होगी जब पेपर आया, और यार रीडिंग में तो इतना कुछ किया मैंने और लिसनिंग में कुछ किया ही नहीं तो इतना आ गया। चलो दैट्स गुड। वैसे वैसे लिसनिंग मैंने भी औखी लगती है, टू बी वेरी फ्रैंक। लेट मी टेल यू माय थिंग, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਵਨਰੇਬਲ ਮੋਡਿਊਲ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, this is the end of the section 1, you are not about to hear the second section ਹੈ, ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਸਵੇਰੇ ਆਹ ਖਾਦਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਤੀ ਆਹ ਖਾਣਾ ਆ, ਹੈ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਉਹ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਬੜਾ ਸਵਿਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਬੜਾ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਸਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਹ ਲਿਆ, हाँ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਰਾਈਟਿੰਗ? ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗੀ? ਹਾਊ ਵਾਸ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪਾर्ट? नहीं, कल आया? राइटिंग अच्छी थी, राइटिंग अच्छी थी, सही थी डिड यू राइटिंग, डिड क्योंकि यू वो क्रैम प्रैक्टिस किया एनीथिंग? हुआ था ना। नहीं, नहीं, डिड यू कुछ क्रैम भी एनीथिंग? क्रैप नहीं, ना कुछ भी नहीं। मतलब जब मेरा पेपर था, आई थिंक सो इट इज ऑन 6 नवंबर, तो उससे पहले शायद दिवाली थी। तो कुछ भी हाँ। क्रैप नहीं किया, कुछ भी याद नहीं किया, करने का वहां पे पॉसिबल थिंग है ही नहीं, आना ही नहीं जब पेपर में, तो हम क्या याद कर लोगे ज्यादा से ज्यादा। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਯੂ ਵਰ देयर, यू वर प्रिपेयरिंग विद जसलीन एंड सुखविंदर, है ना? हाँ जी सर। The three musketeers.
ਬੜਾ ਵੈਸੇ ਵਾਕਈ ਦੋਜ਼ ਵਰ ਦ ਡੇਜ਼ ਐਂਡ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਰ ਪੇਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਐਂਡ ਬਾਏ ਦਾ ਵੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ 7 ਬੈਂਡ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਸਲੀਨ Yes. ਦੇ 7.5 ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਦੇ ਡਿਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਸਪੀਕਿੰਗ? ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਦੱਸੂੰਗਾ ਤੇਰੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸਪੀਕਿੰਗ ਤੇ ਆ। तो स्पीकिंग वहां पे जब मैं स्पीकिंग देने गई, वहां पे सारे बच्चे ऐसे बुक्स लेकर ना पढ़ रहे थे, और मैं ऐसे देख रही थी कि वो क्या पढ़ रहे हैं ऐसा जो मैं नहीं पढ़ रही थी। मतलब दे आर यूजिंग डिफिकल्ट वर्ड्स एंड डिफिकल्ट मीनिंग्स टू, मतलब जैसे मतलब स्पीकर को इम्प्रेस करना है पूरा पूरा कि अच्छा, हाँ मुझे इतना पता है, मेरी डू यू स्पीकिंग फील इतनी अच्छी इनसिक्योर, डू यू फील इनसिक्योर व्हेन अदर्स आर रीडिंग एंड ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ हो यार ये क्या पढ़ रहे हैं यार, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है इस पे क्या करना है? डू यू फील इनसिक्योर है। कि यार नहीं ये सर, फिर मैंने ये सोचा था कि अगर तूने मतलब अगर देना है तो फिर हाँ हाँ पूरा देना है अपना। मतलब ये डिफिकल्ट वर्ड्स आप याद कर लो, उसके बाद आपको मीनिंग नहीं पता कि क्या इसका मीनिंग है। सिंपल वर्ड्स मैंने चूज किए थे और स्पीकिंग दे दी। कीवर्ड क्या है, ऐसे कुछ याद है? सर शायद आया था कि अ पर्सन हु सिंग्स और द पर्सन हु टीच यू द म्यूजिक, यही आया था हम्म, शायद। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕੁਝ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਟੇਢਾ ਸੀ। हाँ। It was tricky. It was tricky, but still you managed 7 in speaking. Good, good, good. अच्छा ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ speaking ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, I always thought speaking is your that module which is unpredictable. ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਯੂ ਕੈਨ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਲਾਈਕ ਰੀਡਿੰਗ ਚ ਇੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਰੀਡਿੰਗ ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਚ ਇੰਨੇ ਆਣੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਇੰਨੇ ਆਣੇ ਆ हम्म। ਜਾਣਗੇ। ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਾਸ ਦ ਮੋਸਟ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਮੋਡਿਊਲ ਆਫ ਫਿਲਮਸ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਆ ਦਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਵਾਟ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਲਾ ਦੂ ਬੈਂਡ, ਫੇਰ ਤਾਂ 7 ਬੈਂਡ 6.5 ਬੈਂਡ ਕਿਤਨੀ ਗਿਆ, ਜੇ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਿਆ, हम्म। ਠੀਕ ਹੈ, that ਵਾਈਬ ਅਗਰ she ਜਾਂ he हाँ। is not able to get, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ 5.5 ਜਾਂ 5 ਤੇ ਹੀ ਮੋੜ ਦੇਵੇ। this was my vibe. I didn't tell you, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰੱਬਾ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਮਾਰੀ ਆ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ। ਅੱਛਾ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਆ ਜਾ ਭੈਣੇ, ਹਾਊ ਵਾਸ ਦ ਰੀਡਿੰਗ ਪਾर्ट? सर शायद रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग। हाँ, रीडिंग सबसे लास्ट में होता है ना। हाँ। बस तब तक तो सब कुछ दिमाग से चला गया था कि अच्छा क्या why है क्या why नहीं। you why you felt reading as very hard? ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤੇਰੀ ਕਦੀ ਰੀਡਿੰग ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਯੂ ਸੈਡ ਵਾਂਸ ਕਿ ਸਰ रीडिंग नहीं हो रही, रीडिंग मेरे को बड़ा नहीं स्ट्रेस। नहीं, पता है वहां पे जो हॉल में हम बैठे थे ना, हम्म वो सिर्फ सब स्ट्रेस में थे। यार हम्म रीडिंग, अगर ये क्वेश्चन नहीं आया हमें तो इतना बैंड कम हो जाएंगे, या अगर हम्म ये क्वेश्चन नहीं आया तो हमारे इतने स्कोर कम हो जाएंगे। तो जब एवरीवन वाज लाइक कि हाँ यार हमें सब वो स्कोर करना है बस, हम्म तो तब मुझे भी थोड़ा हुआ कि नहीं यार, अगर मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट ना डिडक्ट हो जाए। तो आई वाज इन अ स्ट्रेस हम्म। इट्स दैट सिचुएशन ਪਰ कि ਪ੍ਰਿਆ हाँ ਮੇਰੀ यार मुझे ये ਗੱਲ करना है ਸੁਣ, सब कुछ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ देख ਕੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦ कि ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ तो ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀਗਾ। नहीं होता है, लेकिन जब आप दूसरों को देखते हो ना कि यार इतने वो ऐसी बातें कर, और ऊपर से जब हॉल में वो इंस्ट्रक्टर होते हैं ना, 20 मिनट्स हाँ। लेफ्ट, 30 मिनट्स लेफ्ट, फिर होता है बंदे को कि बस दिमाग चला लो अपना जितना मर्जी है। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ, ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਘੰਟੇ हम्म। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਡੀਲ ਵਿਦ that kind of negativity, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ 10ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ 5ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਊ ਯੂ ਡੈਲਟ ਵਿਦ ਇਟ? ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ सर मैं ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ कितना रखा? सर बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट ना, आप सबको सुनते हो, बस सुन ही जाओ, करो एक आध से दूसरा निकाल दो बस। मेरा ये पर्सपेक्टिव था वहां पे भी। बड़ा सब औखा वहां है, पे बहुत औखा है। फिर पता नहीं कैसे कर लिया वो पर मैं मुझे भी समझ नहीं आया। मैं ਮੈਨੂੰ ਆ ਪਿੱਛੇ ਕੁ ਨਾ somebody ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੌਰਵ ਗਿਵ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੀ ਵਾਸ ਸੇਇੰਗ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ 2 ਮੁੰਡੇ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾ ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਣੇ, ਐਲਟ ਸੂਲਟ ਹੈ ਜਲੰਧਰੋਂ, ਦੇਣਾ ਪੇਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਤਾਂ 10ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਦੇਤਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 11ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਬੱਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 10 ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ, ਕੈਨ ਯੂ ਬਲੀਵ, ਇੱਥੇ हाँ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚ ਬੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਟ ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਦੋ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ शायद ਕਿਸਮਤ तो ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਮਤ नहीं ਮਾੜੀ सर, ਹੋਵੇ वो ਦੂਜੀ ना ਵਾਰੀ ਚੱਲ स्ट्रेस ਜਾਂਦਾ। में नहीं, वो सर स्ट्रेस में आ जाते हैं। उनको ना एक वो देते हैं कि आपने इतने बैंड लेने हैं, आपको इतना रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है, तो वो शायद स्ट्रेस में आ जाते हैं, उनके कारण उनका पेपर अच्छा नहीं होता। ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸਟ्रेस ਨਾ ਬੈਂਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਟ्रेस ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ कि ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਨਾ ਆਏ। हाँ, क्योंकि जब मैंने भी ऐसे सोचा था ना कि जब मेरा भी आइल्स मैंने सोचा था कि मेरे को करनी है आइल्स, तो मेरे अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत कंसीडर किया ये चीज कि मैं हम्म ज्वाइन करने लगी हूँ आइल्स, तो अगर हम्म आपने भी करनी है तो आप भी कर लो सब। तो वो कहते थे हम्म। नहीं नहीं, हमने नहीं करनी, क्योंकि अगर नहीं हो पाई तो हम लोगों को क्या कहेंगे कि तो आइल्स नहीं दे पाई, मैं ये नहीं कर पाई। मैं वही बात है ना, एंड ऑफ द डे रादर देन, क्योंकि मेरे को लगता है, चलो हम हिंदी बोल रहे हैं, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਟ्रेस ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਈ ਪੇਪਰ ਹਾਈ ਪੇਪਰ हम्म। ਹਾਈ ਪੇਪਰ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਚ ਪੇਪਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ। हाँ। ਐਂਡ ਫੇਰ ਪੇਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਪਰ ਸਵਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਫੀਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਮੋਡਿਊਲ ਸਟ्रेस ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਇਲਸ ਵਿੱਚ। हम्म। ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮੈਨ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅੱਛਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਫਿਰ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ हाँ ਕੈਨੇਡਾ ਫਿਰ, जी सर। ਹਾਊਸ ਲਾਈਫ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਹਾਊ ਯੂ ਫੈਲਟ ਇਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੀ, ਹਾਊ ਵਾਸ ਦ ਫਲਾਈਟ, सर कुछ खाने फ्लाइट, मिले? सर बहुत कुछ खाने को मिला उधर तो। मैं तो खाती आई हूँ। सच्ची? मेरी फ्लाइट ऐसे ही थी, या जैसे यहाँ से दिल्ली से मैं मुंबई आई, मुंबई में 3 आवर्स का स्टे था मेरा, फिर मैं फ्रैंकफर्ट गई, फ्रैंकफर्ट से वहां पे मेरा 1 आवर का स्टे था, फ्रैंकफर्ट से फिर टोरंटो। इट वाज लाइक 3 फ्लाइट्स। रोलर कोस्टर राइड है क्लासिक। हाँ, ਤੇ पूरा पूरा। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਠੀਕ ਸੀਗਾ? ਹਾਊ ਵਾਸ ਦ ਵਾਈਬ ਇਨ ਦ ਫਲਾਈਟ? ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਵਾਸ ਯੂ ਫੀਲਿੰਗ ਲਾਈਕ ਅ ਨਿਊ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੀ? ਹਾਊ ਵੁੱਡ ਇਟ ਬੀ? ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰग्स, ਮਿਕਸ ਫੀਲਿंग्स? सर अगर मैं सच में बताऊँ ना, जब मैं फ्लाइट में हम्म बैठी ना, तब जब दिल्ली से मुंबई आना था ना, तब मैं थोड़ा डर गई थी कि कहीं सब कुछ पीछे छूट गया, वापस चले जाओ, ये कर दो, अब यहाँ से उतर जाओ। फिर जब हम्म मुंबई से फ्रैंकफर्ट पहुंची, तो मुंबई में मतलब जाते ही आप टायर्ड हो गए थे, क्योंकि वहां सिक्योरिटी चेकिंग, सब कुछ चेक, लगेज चेक, सब कुछ करवाना था। फिर हम्म। फ्रैंकफर्ट से टोरंटो, तो मैं सोती आई बस। नींद ही रियली? आ रही थी उस टाइम पे, और कुछ 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 नहीं आया मेरे दिमाग में। ओ मैन, फिर ਜਦੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਉਤਰੇ, you felt that ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ हैं, how was your feeling at that time, starting a new journey of life, or you were like homesick यार, ये क्या हो गया, ये कहाँ आ गया मैं, ये क्या हो गया? नहीं सर, मतलब दोनों मिक्स फीलिंग थी। आपको ये लगता है कि आप यहाँ पे आए हो तो यू अचीव समथिंग, आप यहाँ हम्म अगर आप 10 लाख से अलग आए हो तो यू अचीव हम्म समथिंग, तो आपको एक फीलिंग आती है, एक मोटिवेशन आती है। पर एट द सेम टाइम यू ऑल्सो फील कि यार अपने अपनी इंडिया से अलग आ गए, अपने फ्रेंड से अलग आ गए, अपनी फैमिली से अलग आ गए। फैमिली जो that इम्पोर्टेंस है ना, वो happens। कभी रिप्लेस नहीं हो हाँ, सकती, चाहे आप कहीं भी चले जाओ। नहीं होगी, वो नहीं होगी, वो कभी नहीं होगी। हम्म। तो वो जब तो है। टोरंटो पहुंची, तब यही फीलिंग हम्म। आ रही थी, बस अब घर चले जाओ, घर अब जाना। वापस चले जाओ यहाँ से। वो तो है, वो तो है। अच्छा मेरे को याद आ गया, जब मेरे को हॉस्टल छोड़ा था, आई वॉज एट GNDU कैंपस, एंड मुझे याद है कि माई फादर मदर बोथ दे वेंट टू यूनिवर्सिटी टू हम्म। मेरे को हॉस्टल छोड़ने के लिए। वो जब तक तो मैं उनके साथ हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम गुड, हम्म। ठीक है। जब उन्होंने मेरे को हॉस्टल में छोड़ा एंड दे वेंट, एंड आई फेल्ट लाइक के जैसे ना अंदर बटरफ्लाई इन द स्टमक ओ। है बस। भी यार, ये ये तो मैंने कभी फील नहीं किया, जस्ट बिकॉज आई वॉज वेरी फार अवे फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड इतना भी हम्म। दूर नहीं, अमृतसर कितना दूर है, मतलब जलंधर से या फगवाड़ा से कितना दूर है, बट एंड ऑफ द डे आई जस्ट रियलाइज दैट कनेक्टिविटी विद द फैमिली,
वो हम्म कनेक्शन यू आर मिसिंग राइट नाउ, ठीक है, यू कैन हैव कॉन्वर्जेशन ऑन फोन, ठीक है, यू कैन हम्म हैव योर वीडियो कॉल्स एंड ऑल, पर कभी ना कभी वो चीज, वो एक ना एक वो जो एसेंस होती है, यू मिस दैट थिंग, हम्म वो रहती है। हम्म ये तो है, ये तो है। मतलब मुझे याद है जब मेरी फ्लाइट टेक ऑफ, मतलब दिल्ली में जब मैं बैठी हुई थी, तो मेरे फादर और मेरी मदर मतलब वो एयरपोर्ट के बाहर ही खड़े थे। मतलब जब तक मेरी हम्म फ्लाइट नहीं गई वो नहीं हिले वहां पे। मतलब उनको ये था हम्म कि हमारा बच्चा चला जाए तो हम वहां से चले जाएंगे। जब मेरी फ्लाइट टेक हम्म ऑफ हो गई, जब मैं मुंबई पहुंच गई, तब मैंने उनको मैसेज किया कि आई रीच्ड मुंबई एंड नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट फ्लाइट। तो फिर उनको थोड़ी सेटिस्फेक्शन हुई कि चलो ठीक है, बच्चा चला गया। मतलब दे आर स्टैंडिंग आउटसाइड। आपका एक सपोर्ट सिस्टम वहां पे होता है, लेकिन जब व्हेन यू रीच कनाडा यू हैव टू डू योर थिंग्स योर ओन। यहाँ पे आपका सपोर्ट सिस्टम मिसिंग है। बड़ा बड़ा लगदा है, यही बहुत बात लगदा है है। जिद्दां ना, मैं ਹੁਣ रोहित ਨੂੰ कह रहा हूँ, लास्ट मंथ विशाल केम, विशाल मिलके गया है, यू केम, वो मिलके गई, हम्म ठीक है, एंड सौरव विशा सारे मिलके गए, ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਨਿਆਣੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਾउ दे आर जस्ट गोइंग फार अवे, एकदम से हाँ यू आर जस्ट सिटिंग एंड पढ़ाए ने यार एक रिश्ता आया, हाउ हम्म कैन मतलब बड़ा अजीब लगे, मतलब काफी काफी अजीब लगता है। फॉर एग्जांपल जिदा ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਾਲ जस्ट केम होम एंड विशाल आया अपने ब्रदर ਦੇ ਨਾਲ एंड हम्म ही सेड कि सर बस मेरी ਕੱਲ ਕੱਲ ਫਲਾਈਟ ਹੈ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਾਤ ਫਲਾਈਟ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ ਮੈਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਲੇ ਜਲਦੀ ਚ ਸੀ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ हम्म ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹਿ 2 ਮਿੰਟ ਯਾਰ, 2 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, हम्म ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ and you feel like if somebody has taken, you know, a piece of your consciousness हम्म with them, हम्म ਉਹ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਚੱਲ ਹੁਣ ਬੜੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ हम्म ਉਹਦਾ ਚੱਲ ਦੱਸ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ, हम्म। ਇੰਨਾ सर ਸੋਹਣਾ अभी है। अभी तो ठंड हो रही है यहाँ पे, स्टार्ट हो गई है ठंड यहाँ पे तो मतलब इतनी सर्द, मतलब ठंडी हवाएं चलती है, मतलब ठंड जाता है पूरा पूरा। पर मतलब अंदर तो ठीक है, ठीक है। मौसम एडजस्ट हो रहा है। अंदर ठीक है, अंदर सेटल, हम्म। अंदर सब कुछ सही है। आपकी सब अकोमोडेशन अच्छी हो तो सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। यही बात फ्रेंड्स होती बन है। गए, और ऊपर फ्रेंड्स से बन गए। मेरी सिस्टर, नहीं सर हम्म अभी नहीं बने। अभी तो मुझे जस्ट अ वीक हुआ है कि मैंने अपना कॉलेज स्टार्ट किया है, क्लासेस स्टार्ट की है। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਸਲੀਨ तो ਹੁਣੀ, सर हेलो सर। इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। आई बस, वही। मैं इनको रोज मैसेज करती हूँ कि हाँ हम्म। कब मिलना है। मेरी असाइनमेंट्स है, मेरे शिफ्ट है, मेरी ये अरे है, मेरी वो है, मैं सब कुछ है। कईयां ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਿਪਲਾਈ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਭਰਾਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਹੈਵ ਸਟਾਰਟਡ देयर ਲਾਈਫ, ਯੂ ਫੀਲ ਲਾਈਕ हम्म ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟਸ ਗੁੱਡ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ। दैट्स नाइस। अच्छा, कितने माड़ा मोटा कनाडा घूमे, डिड यू वेंट एनीवेयर टू सी एनीथिंग? हाँ सर, मैं डाउनटाउन गई थी। यू वेंट टू डाउनटाउन, हाउ यू फेल्ट देयर, यस। कितना लगा, अनदर चंडीगढ़ काइंड अच्छा, ऑफ थिंग? नहीं वो एक मॉडर्न वो है, दिल्ली टाइप वाली फीलिंग आती है आपको कि आप दिल्ली आ गए हो। है, एवरीवन मतलब रियली? ठीक है। हाँ सब कुछ वहां पे मतलब ठीक है, सब चिल कर रहे हैं। एवरीवन वाज लाइक कि हाँ हम अपने मतलब ग्रुप में है वहां पे सब। अगर आप फ्रेंड्स के साथ जाओ तो आप इंजॉय करते हो सब कुछ। अगर हम्म। अपनी सिस्टर के साथ जाते हो तो यू इंजॉय लेस, कि हाँ चलो ठीक है ये सब कुछ है। वो तो यहाँ होना पे ही है, यही let है। us, वो तो होना ही है। अच्छा, हाउ इज कनाडा फॉर गर्ल्स, as per as a mental security is concerned, या physical security is concerned for the girls, कितना लगा? बिकॉज तो मेरी स्पेशली जसलीना भी, ਮੈਨੂੰ क्योंकि मेरी ना जसलीना भी ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, सो शी वाज आल्सो सेइंग कि सर इट्स गुड, बहुत ਵਧੀਆ ਆ, चंगा आ, हना इदां है होता है, तेनू कितना लगा? सर मुझे भी मतलब ठीक है, स्पेशली फॉर गर्ल्स देयर सिक्योरिटी एवरीवेयर। मतलब आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, यू हैव एवरीवन, एक्सेसिबिलिटी है यहाँ पे, सब कुछ सही है, सिक्योर। अगर आपको कोई दिक्कत भी होती है तो यू हैव जस्ट अ फोन, कॉल करना पड़ता है यहाँ पे कि हाँ मुझे ये दिक्कत हो रही है, मुझे ये परेशानी है, तो इट इज सेफ फॉर गर्ल्स। पर एज फॉर द मेंटल हेल्थ, द गर्ल्स हैव टू हम्म प्रिपेयर कि हाँ उनको कितना अपने आप को स्ट्रांग रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग अलग हैं।
दे आर हेल्पफुल बट इन डिफरेंट वे कि हाँ वो हेल्प कर देते हैं, पर कई बार कई पंजाब यहाँ स्पेशली अगर मैं इंडियंस की बात करूँ तो दे आर नॉट सो हेल्पफुल बिकॉज दे आर रियली प्रैक्टिकली यस। हाँ यहाँ पे यही है, मतलब दे आर नॉट टॉकिंग टू यू बट द कैनेडियंस एंड द अदर पीपल दे आर टॉकिंग टू यू, दे आर लाइक वाह दैट। व्हाट एन आयरनी वाह मतलब अपने बंदे नहीं कम मतलब तो हेल्प कर दे नहीं बाकी कर हाँ दे नहीं, बिकॉज जो इंडियंस है वो अपने आप को कंसीडर करने लग जाते हैं कि हम कनेडियंस हैं, हम ओ यही इस देश में है कि हम बहुत सुपीरियर हैं इनसे जो न्यू आए हैं बेचारे। ताड़ा तो बेड़ा गर्क हो गया है आई फील दिस थिंग जब भी अच्छा हम ट्रेन और बसेस में ट्रैवल करते हैं ना, तो जब मैं फर्स्ट टाइम कॉलेज गई आई डोंट नो द वे, इवन माय हम्म, सिस्टर टोल्ड मी एवरीथिंग कि आपने ये बस लेनी है, आपने ये ट्रेन लेनी है उसके बाद, पर प्रैक्टिकली कभी याद नहीं हुआ मुझे कि नहीं कौन सी आता बस था है, कौन सी ट्रेन है। तो मैंने हम्म बहुत जनों से पूछा कि मुझे ये बस है तो आप मुझे हेल्प कर दो, ये कब मिलेगी, तो मोस्टली हम्म इंडियंस को यू प्रेफर क्योंकि आपको पता है ये बेट समझ ऑब्वियस जाएंगे सी आके गल है लेने। हाँ हम्म बट दे आर नॉट कंसिडरिंग यू कि हाँ ठीक है हमारे पास टाइम नहीं है, आप किसी और से पूछ लो। एंड रियली आई वाज लाइक अ इंडियन आपको हेल्प करनी चाहिए मेरी और आप नहीं कर रहे हो। तो जब मैं कनेडियंस या दूसरे जहाँ से आए जैसे बांग्लादेशी है यहाँ पे और अफ्रीकन हैं, दे आर मोर हेल्पफुल, दे आर लाइक यार आप यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ से बस आएगी, इवन अगर आप मेरे साथ आते हो तो मैं आपको ड्रॉप बता दूंगी कि यहाँ बस है, दे आर दैट्स लाइक सो दैट। नाइस दैट्स सो नाइस एंड दे ऑलवेज ग्रीट, मतलब जब भी आप उनसे पूछो दे ऑलवेज वेलकम यू कि हाँ एक स्माइलिंग फेस के साथ कि हाँ ठीक है ये अच्छा है आपके लिए, आप ये ले लो। this happened with me also मैं when I was in America ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਏ 5:30 ਵਜੇ ਤੇ ਹਰ ਅਮਰੀਕਨ who is native American or हाँ Afro-American they greeted so well good morning how are हाँ you have a nice day and ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਸੇ ਨੇ ਤੇ ਯੂ ਫੀਲ that ਕਿ ਯਾਰ हम्म, ਫਿੱਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਚਲ ਘੁੰਮਣ ਹੀ ਆਏ ਆ ਇੱਕ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ हम्म, ਕਹਿਣ ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਦਤ ਮੇਰੀ हाँ ਐਸੀ ਪੈ ਗਈ that ਗੁੱਡ ਡੇ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਗੁੱਡ ਡੇ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਪੀਪਲ ਵਰ ਲਾਈਕ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਡ ਡੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯੂ ਫੀਲ ਦੈਟ ਵਾਈਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਹਰ हाँ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿਆ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ हम्म ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ हम्म ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ हम्म ਲਿਟਰਲੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਟ ਕੁਝ हम्म ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ हम्म ਯੂ ਫੀਲ ਦੈਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ हम्म ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ सर नहीं, ਕਿ ਸਿਰਫ अगर जैसे अब ਦਿਹਾੜੀਆਂ मेरी ਦਾ ਹੀ क्लास ਪता में ਸਿਰਫ है, सर अगर आप इंडियंस की बात करो, मतलब अगर आप केरला वाली साइड की बात करो या बेंगलुरु की साइड वाली बात करो, दे आर मोस्ट अवेयर ऑफ द थिंग्स कि हाँ मतलब हम्म ये अवेयरनेस मुझे नहीं है मेंटल हेल्थ के बारे में, इवन बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट यू मतलब मुझे हम्म इतनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन अगर आप केरला साइड या हैदराबाद वाली साइड से बात करो तो दे आर हम्म मोस्टली अवेयर ऑफ द ऑल द थिंग्स। और अगर हम्म स्पेशली अगर हम अपनी कम्युनिटी पंजाबीज की बात करें, दे आर ऑल हम्म अबाउट कि यार आज शिफ्ट लगानी है इतने बजे से इतने बजे तक, हम्म मतलब यहाँ पे सिर्फ शिफ्टों में ज्यादा है, पढ़ाई पे नहीं है, ये मैंने पढ़ाई पे फील किया फोकस है नहीं यहाँ पे, पढ़ाई पे फोकस नहीं। है अच्छा तो मेंटल हेल्थ की तो कोई बात ही नहीं करता होगा नहीं सर, इवन यहाँ पे कोई बात ही नहीं करता, यहाँ पे कोई बात नहीं करता कि आपको होम सिकनेस हो रही है या आप आइसोलेट हो रहे हो या फिर आपको स्ट्रेस हो रहा है या आप डील नहीं हम्म कर पा रहे हो। तो हम्म इवन व्हेन आई टॉक टू माय टीचर्स आल्सो दे यूजुअली हेल्प मी आउट कि हाँ आप ये करो, चलो आपको कोई बिजी शेड्यूल हम्म रखो अपना या फिर कुछ और करो, अच्छा या do फिर you यहाँ पे कुछ। just let me know this let's say you said about it homesickness feel ਹੁੰਦੀ ਹੈ isolation feel ਹੁੰਦੀ ਹੈ and especially for the girls हम्म ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਫੀਲ ਕਰੇ हम्म ਮਤਲਬ surrounded by people but still हम्म alone ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ हम्म ਉਸ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ how is it ਪ੍ਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ you are standing on the airport ਚਾਹੇ airport ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ you are standing on the airport there are thousands of people around you but still you are alone हम्म हम्म mentally you are not connecting with anybody है ना हम्म। you getting what I'm saying
तो जब मैं एयरपोर्ट पे खड़ी थी तब मेरे को ना सिर्फ यही well हो रहा था कि मैं चली जाऊँ, not वापस only चली जाऊँ। airport, not only airport, let's say you are just standing on the road also, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, you are just हम्म। relating to few of the colors, ਠੀਕ ਹੈ, हम्म। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨੋਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਨੋਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ हम्म। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, and if that those people don't help you out, हम्म। don't you think कि ਉਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ? नहीं सर, कभी कभी लगता है, मैं भी इस चीज को पहला बहुत करती थी कि नहीं यार, मैंने अगर इंडियन से पूछा तो वो मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहा, पर मैंने उस चीज को एक्सेप्ट किया कि चलो अगर वो हेल्प नहीं कर रहा तो आई एम कैपेबल इनफ टू गेट द थिंग्स। इतना हाँ तो ये तो हूँ है, कि हाँ, स्ट्रांग रहना पड़ता है यहाँ पे आपको, मेंटली फिजिकली यू हैव टू वर्क फॉर योर ओन। यहाँ पे फिजिकली ऐसा नहीं नालों है वैसे कि आप, मेंटली ज्यादा स्ट्रांग चाहिए वैसे बंदा। सर मेंटली यू हैव टू डील विद ऑल द हो, मतलब यहाँ पे ये है कि आप घर आ रहे हो, यहाँ पे चार हम्म दीवारें देख रहे हो, बस चार दीवारों में ही आपको कुछ होने लग जाता है कि नहीं यार बस हो रहा है, अब यहाँ से बाहर निकलो। सीरियसली अगर बड़ा मुझे फर्क यहाँ पैंदा है। पे करना पड़ता है तो आई हैव टू कॉल, मैं तो अपने पेरेंट्स को कॉल कर लेती हूँ जब भी मुझे ऐसा फील होता है, चाहे नहीं वहां पे ਵਧੀਆ, रात के 12 बज रहे हो। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪ੍ਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੈਨ ਯੂ ਕਾਲਡ ਮੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਟ ਵਾਸ 11 हाँ। in the night, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਿਆ ਦਾ ਫੋਨ अराइव ਹੈ, के। ਫਟਾਫਟ ਚੁੱਕ। ਆਈ ਕੈਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਯੂ ਫੀਲ ਹੋਮਸਿਕ, हम्म। ਕਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, हम्म। ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਵੀ ਜਸਟ ਫੀਲ ਲਾਈਕ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ, 24 ਆਵਰਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, हाँ। ਜੇ ਉਧਰ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਰਾਤ ਹੈ, ਸੋ ਰਾਤ ਨੂੰ हाँ। ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੌਣਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਸੋ हम्म। ਕੰਫਰਟੇਬਲ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ, now let us give some kind of things like that, अगर let's say somebody reaches Canada, ठीक है, and वो हम्म। पहला पहला दिन है, any हम्म। suggestion that you want to give, कितना कितना वो उस चीज डील करे? सर अगर उसका जैसे फर्स्ट टाइम है यहाँ पे कनाडा में और वो अभी भी पहुंचा है, उसको अभी भी हो रहा है कि अभी भी होप सिकनेस हो रही है, तो मेरे को ये मतलब जो मैंने अपने आप पे अप्लाई किया है वो ये है कि यहाँ पे स्ट्रगल है, 3-4 साल आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, पर एट द एंड यू अचीव समथिंग। तो हम्म अपने आप को जितना आप पिघला सकते हो, जितना आप कर सकते हो अपने आप को मोटिवेट उस टाइम उतना ही कर, और री किया करो, रिवॉर्ड्स दिया करो, खुद को अप्रिशिएट किया करो कि हाँ यार आज ये दिन में ये चीज मेरे साथ अच्छी हुई है, तो मैं ऐसे हम्म, और अच्छा कर सकता हूँ। तो मैंने that is तो good. ये है कि जब फर्स्ट डे यहाँ पे आई तो मैंने अपनी डायरी मतलब डायरी आई यूज टू राइट होल डे कि आज मैंने ये कर दिया, आज मैंने ग्रोसरी इतनी ली है, या मैंने ये Wow. बस छूट गई तो मैंने ये कर दिया है, बस लिखी जाओ, यू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। जब तक That एक्सप्रेस is नहीं करोगे वो आपको अंदर रहता रहेगा। तो ये किया जो मैंने किया। अच्छी बात है, अच्छी बात है, when you drain out your feelings and you feel relaxed, तब relax feel हम्म। करते हो। अच्छा अब ये बता ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਸੇ ਆ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨ ਆਈਲੈਟਸ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਪਿਆ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ तो, ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸੋ तो ਕੀ ਹਾਂ ਕੀ ਰਿਵਿਊ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, what you want to say for them? सर मुझे तो ऐसा लगता है कि जो आइल्स है ना, दैट इज बेसिकली योर पर्सनालिटी, हाउ यू एक्सप्रेस योर पर्सनालिटी इन अ वे ऑफ राइटिंग और इन अ वे ऑफ स्पीकिंग। लिसनिंग और रीडिंग में तो यू हैव टू बी अ मेंटली स्ट्रांग, कि हाँ आपको अपने आप इतना स्ट्रांग करना है कि यार अगर मुझे ये करना है तो मुझे करके रहना है। ये प्रोस्पेक्टिव से आगे भी अगर मैंने सुना है यहाँ पे बहुत सारी रिफ्यूजल्स आई हैं, यहाँ आपके वीजास नहीं लग रहे, इवन मेरा वीजा इतनी देर बाद लगा है और मैं इतनी ग्लैड हो गई कि जब आया। मैं वो दर्द छेड़ना ही नहीं चाहता, मैं उस बारे ताई गल नहीं की थी सीगी कि भाई मार्च दी फाइल लाई जाके वीजा जाके आया एन सितंबर दे एन सिरा, ओ नहीं सितंबर नहीं, अगस्त। अगस्त और अगस्त। प्रिया ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਕਿ ਸਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਿया ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ सीरियसली। चलो दैट्स गुड, इट वाज वेरी गुड प्रिया, काफी चंगा लगा तेरे नाल गल करके, एंड आई थैंक यू। विश यू अ वेरी गुड लक फॉर योर फ्यूचर, एंड इतना ही हंसता रहे, एंड यू हैव बिकम सो मैच्योर।
ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ the way you dealt with all the things you are still you're like a warrior ਇਹਦਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀ ਕਰੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਦੇ ਚ ਫਸ ਹੁੰਦੇ ਸਰ ਕੰਮ 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 ਤੋਂ ਆਇਆ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲੇ ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਫੀਲਿੰਗ ਇਟ ਸੋ ਮਾਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੀ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਡੂ ਰਾਈਟ ਇਟ ਐਂਡ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਊ ਵਾਸ ਯੂਰ ਜਰਨੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਆਈ ਗੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਇਲਸੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਕਰੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰ ਪਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਆ ਸੁਣ ਲੇਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡਾ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੀਪਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬੱਚਾ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਿਆ ਐਂਡ ਇਦਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਬਾਏ ਬਾਏ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਬਾਏ ਥੈਂਕ ਯੂ